بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، جغرافیکل اسیٹ پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب جو 2024 اور 25 کی نئی ایڈیشن ہے، اس کے چیپٹر نمبر 1 سے آج لیسن نمبر 5 پڑھیں گے، لیسن نمبر 5۔ تو آج کا لیسن ہمارا شروع ہوتا ہے رول آف میرین بایو ڈائیورسٹی آن آور انوائرمنٹ، یہاں سے پیج نمبر 9، پیج نمبر 9۔ تو چلو آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ اچھا، رول آف میرین بایو ڈائیورسٹی آن آور انوائرمنٹ، ہماری ماحول میں بحری حیاتیاتی تنوع کا کردار۔ میرین بایو ڈائیورسٹی میں بی ڈیٹرمنٹ، اچھا جو بحری حیاتیاتی تنوع ہے یہ اس وجہ سے ہے بیکاز دی ویرائٹی آف لائف فاؤنڈ ان دا اوشن اینڈ سیز، کیونکہ بحر اور بحیروں میں یعنی سمندروں میں زندگی کی ویرائٹی پائی جاتی ہے، زندگی میں تغیر پایا جاتا ہے۔ It has great importance for the 3 fundamental pillars، اس کی یعنی میرین بایو ڈائیورسٹی کی 3 بنیادی جو ستون ہے، ان میں اس کی بڑی اہمیت ہے بحری حیاتیاتی تنوع کی۔ وہ 3 بنیادی ستون کون سے ہے؟ اکنامک یعنی معاشی یا اقتصادی، سوشل سماجی، اینڈ انوائرمنٹل اور ماحولیاتی، آف سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، پائیدار ترقی کی، اور یہ پائیدار ترقی کی ضامن ہے یہ تینوں بنیادی ستون۔ دی رول آف میرین بایو ڈائیورسٹی، بحری حیاتیاتی تنوع کا کردار، ان اور انوائرمنٹ ہمارے ماحول میں، کین بی ڈسکسڈ پر بات کی جا سکتی ہے یا پر بحث کی جا سکتی ہے ان دا فالوئنگ پوائنٹس، مندرجہ ذیل نکات میں۔ The ocean is one of the main bank reservoirs of the world's biodiversity۔ دنیا کی جو حیاتیاتی تنوع ہے تو اس میں سمندر ان بڑے ذخیروں میں سے ایک ہے، یعنی سمندر بھی ایک بڑا ذخیرہ ہے یا ایک سمندر ایک بڑا خزانہ ہے بایو ڈائیورسٹی کی۔ It constitutes over 90% of the habitable space on the planet۔ یہ یعنی اوشن، سمندر، روئے زمین پر 90% سے زیادہ حصہ جانوروں کے لیے یا جانداروں کے لیے مہیا کرتی ہے، جہاں پر جانور اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ and contains some 2500 known species۔ اور یہ جو سمندر ہے یہ 2,50,000 سے تقریباً 2,50,000 معلوم جانوروں کے نسل پر مشتمل ہے، یعنی سمندروں میں 2,50,000 قسم کے جانور رہتے ہیں جو ہمیں معلوم ہے، ان جانوروں کی قسم بھی ہمیں معلوم ہے۔ The ocean and the life therein، سمندر اور اس میں پائے جانے والی زندگی، سمندر اور اس میں جو موجود زندگی ہے are critical to the healthy functioning of the planet۔ تو یہ روئے زمین پر جو صحت مندانہ عمل ہے اس کے لیے خطرہ ہے۔ Supplying half of the oxygen، جو ہمیں آدھی آکسیجن مہیا کرتی ہے، we breathe یعنی جس میں ہم سانس لیتے ہیں، and absorbing، اور جذب کرتی ہے یہ سمندر annually، سالانہ about 20% of the anthropogenic کاربن ڈائی آکسائڈ، انسانوں سے خارج ہونے والی کاربن ڈائی آکسائڈ کو emitted into the atmosphere، جو فضا میں خارج ہوتی ہے، یعنی اور انسان یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا میں خارج کرتے ہیں۔ تو اس کاربن ڈائی آکسائڈ کا
तकरीबन 20% हिस्सा ये समंदर जज़ब करते हैं। The fishery and aquaculture sectors are a source of income for hundreds of millions of people. माहीगीरी या मछली और आबी ज़खायर लाखों लोगों के लिए माश का एक ज़रिया है या आमदनी का एक ज़रिया है, स्पेशली इन लो इनकम ऑफ फैमिलीज़, ख़ास तौर पर लो इनकम फैमिलीज़ के लिए, यानी कम आमदनी वाले ख़ानदानों के लिए। इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन द फूड सिक्योरिटी। ये यानी समंदर बराह रास्त और बिलवास्ता खुराक की तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा कर रही है। समंदर मेरीन इकोसिस्टम प्रोवाइड मेनी सर्विसेज फॉर कोस्टल कम्युनिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड। अच्छा, मेरीन इकोसिस्टम यानी बाहरी माहौलियाती निज़ामों दुनिया में साहिल के साथ जो नज़दीक लोग हैं या जो आबादियाँ होती है उनके लिए खदमात पेश कर रही है। सच एज जैसा कि लाइवलीहुड यानी माश, ज़रिया माश जिनके ज़रिए लोग माश कमाते हैं या रोज़ी रिज़्क़ कमाते हैं। क्लीन वाटर, साफ़ पानी, यानी उन्हें साफ़ पानी भी मिलती है इन लोगों को जो कोस्टल के साथ यानी जो साहिल के साथ नज़दीक रहते हैं। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, उन्हें लकड़ी का सामान भी मुहैया होता है, एट्सेट्रा वगैरह। देयरफॉर इसलिए नोबडी कैन डिनाई, कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता, दैट के ओशंस एंड बायोडाइवर्सिटी के दे आर इन के समंदर और इसमें पाए जाने वाली हयातियाती तनों इज़ कंट्रीब्यूटिंग ए लार्ज इन आवर इन्वायरमेंट। तो ये हमारे माहौल में एक बड़ा किरदार अदा कर रही है। अच्छा, नेक्स्ट है थ्रेट्स, यानी वो खतरात दैट ओशंस आर फेसिंग नाउअडेज, जिनका समंदरों को आजकल सामना है। अच्छा, ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर थ्रेटनिंग द हेल्थ ऑफ अर्थ्स ओशंस। इंसानी सरगर्मियाँ रोए ज़मीन पर या ज़मीन में जो समंदर पाए जाते हैं उनके लिए, उनके सेहतमंदाना माहौल के लिए ख़तरा पैदा कर रही है इंसानी सरगर्मियाँ। ड्यू टू दिस एक्टिविटीज़, इन सरगर्मियों की वजह से यानी इंसानी सरगर्मियों की वजह से मेरीन इकोसिस्टम्स बाहरी माहौलियाती निज़ाम आर चेंजिंग वेरी रेपिडली, बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है। सम ऑफ द रेपिडली इंक्रीजिंग थ्रेट्स आर, कुछ तेज़ी से बढ़ने वाले ख़तरात मंदरजा झेल है। नंबर 1, द रेपिड अर्बन ग्रोथ, यानी तेज़ शहरी तरक्की, शहरी आबादी में ये जो तेज़ी से इजाफा हो रहा है। एंड म्यूनसिपल वेस्ट वाटर और बल्दियात या शहरी आबादी से जो गंदा पानी निकलता है, इस पॉल्यूटिंग द मरीन वाटर, तो इससे बाहरी पानी या समंदरों की पानी आलूदा हो रहा है। दिस पॉल्यूशन एडवर्सली इफेक्टिंग द मरीन बायोडाइवर्सिटी, ये आलूदगी बाहरी हयातियाती तनों पर बुरी तरह असर डाल रही है। नंबर 2, मोर देन 80% ऑफ मेरीन पॉल्यूशन कम्स फ्रॉम लैंड बेस्ड एक्टिविटीज़। अच्छा, 80% से ज़्यादा जो मेरीन पॉल्यूशन है, जो बाहरी आलूदगी है, ये ज़मीन पर होने वाली सरगर्मियों से आता है। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से इंटायर मेरीन इकोसिस्टम्स, पूरी बाहरी माहौलियाती निज़ाम आर चेंजिंग रेपिडली, तेज़ी से तब्दील हो रही है। नंबर 3, ग्लोबल वार्मिंग इज़ काजिंग अल्टरेशंस इन ओशन कंपोजिशन। ग्लोबल वार्मिंग यानी आलमी जो हरारत है या जो गर्माइश है, ये समंदर की बनावट की तब्दीली का सबब बन रहा है, या इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदर की जो बनावट है इसमें तब्दीली आ रही है। विच इज़ थ्रेटनिंग मेनी स्पीशीज़ ऑफ मेरीन एनिमल्स, जो बहुत से बाहरी जानवरों को ख़तरा, जो बहुत से बाहरी जानवरों के लिए ख़तरात पैदा कर रही है या ख़तरात का बायस बन रही है।
नंबर 4, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल प्लांट्स, कारखाने और सनती प्लांट्स डिस्चार्ज सेवेज से गन निकलती है एंड अदर रन ऑफ इनटू द ओशंस, और दूसरे समंदरों के साथ मिलते हैं, यानी और दूसरे गंदा मवाद समंदरों में जाकर गिरता है, विच विच आर हार्मफुल फॉर फिशिंग, जो मछलियों के लिए नुकसानदेह होता है, एंड टू मेरीन डाइवर्सिटी, और बाहरी तनों के लिए भी ये नुकसान का बायस बनता है। नंबर 5, स्पिलिंग ऑफ ऑयल फ्रॉम द शिप्स, जहाज़ों से जो तेल निकलता है, इस पॉल्यूटिंग द ओशंस, ये समंदरों को आलूदा कर रहे हैं, इसकी वजह से समंदर आलूदा हो रहे हैं। किस चीज़ से? जहाज़ों से जो तेल निकलता है। नंबर 6, ओवर फिशिंग इज़ आल्सो ए थ्रेट टू मेरीन स्पीशीज, ओवर फिशिंग यानी ज़्यादा मछली पकड़ना भी बाहरी जानदारों की नस्ल के लिए, या समंदरों में जो मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर रहते हैं उनके लिए ख़तरा बन रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है हाउ वी कैन मिनिमाइज द थ्रेट्स, हम इन ख़तरात को किस तरह कम कर सकते हैं, इन ख़तरात में हम किस तरह कमी ला सकते हैं। देयर आर सम मेजर्स, कुछ ऐसे इकदामात है टू रिड्यूस द थ्रेट्स, जिनकी वजह से हम उन ख़तरात को कम कर सकते हैं बीच ओशंस आर फेसिंग, जिनका समंदर सामना कर रहे हैं। नंबर 1, एस्टेब्लिश मेरीन पार्क्स टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, हयातियाती तनों की तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए या की तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहरी पार्क कायम करना। नंबर 2, रिड्यूस डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस सच एज ट्रॉलिंग, अच्छा, मछली पकड़ने के आमाल जो प्रैक्टिसेस है उनको ये तखरीबी किस्म के होते हैं, और इनमें कमी लाना, सच एज अ ट्रॉलिंग जैसा कि जाल बचाना, जिस तरह मछलियों के लिए माहीगीर जाल बिछाते हैं उनमें कमी लाना। नंबर 3, मिनिमाइज द यूज़ ऑफ मिलिट्री सोनर, फ़ौजी सोनर के इस्तेमाल को कम करना। फ़ौजी सोनर, सोनर क्या होता है? सोनर एक किस्म का आला होता है जिसकी वजह से फ़ौजी लोग समंदर में मौजूद चीज़ों का मौजूद जो जहाज़ वगैरह गार्क हो जाते हैं तो उनके पार्ट्स का पता वो लगाते हैं, तो जिनके लिए ये फ़ौजी लोग सोनर का इस्तेमाल करते हैं। और इस सोनर की वजह से, इस आले की वजह से क्या होता है, दैट कैन हार्म और किल वेल्स एंड अदर मेरीन मैमल्स, यानी जो वेल्स मछली और दूसरे बाहरी जो ममालिया जानवर होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। इस आले की वजह से या तो उन्हें नुकसान पहुंचता है या उन्हें मार देते हैं। नंबर 4, हेल्प फिशर्स टू मेंटेन देयर लाइवलीहुड्स, अच्छा, रोज़ी कमाने में माहीगीरों की मदद करना, किस तरह? बाई इनकॉर्पोरेटिंग कंजर्वेशन एफर्ट्स, यानी जब वो तहफ़्फ़ुज़ाती कोशिशों को तेज़ करते हैं, या जब वो तहफ़्फ़ुज़ाती इक़दामात उठाते हैं खुराक की हिफाजत के लिए, जब वो इक़दामात उठाते हैं माहीगीर लोग, तो उन्हें बरकरार रखना। नंबर 5, प्रोमोट सस्टेनेबल फिशिंग हार्वेस्ट, मछली की पैदावार पायदार मछली की पैदावार को फ़रोग़ देना। नंबर 6, रेज़ पब्लिक अवेयरनेस टू कीप द कोस्ट क्लीन, साहिली इलाकों को साफ रखने के लिए अवामी आगाही बढ़ाना। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस लेसन का इख्तिताम होता है और इस तरह चैप्टर नंबर 1 भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेसन का आप लोगों को समझ आ गया होगा।
پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کی مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتا ہو۔ اللہ حافظ۔